very warm good morning to all my dear students of class 5. कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड. आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं जो इंग्लिश के वीडियोस बनाता हूँ उन्हें आप केयरफुली देखते होंगे, आप उसमें इंटरेस्ट लेते होंगे और आप वर्ड्स, ग्रामर, रिलेशंस, ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करते होंगे. वेरी गुड, गुड. In the meanwhile, today we are going to learn the 9th chapter of your English textbook. The name of the chapter is Uncle Ken at the Wicket. There's a man whose name is Ken. He is an elderly person, and he is the uncle of the narrator of this story. The person who is reciting this story to us, who is telling this story to us, Uncle Ken is his uncle. I mean, Ken is the uncle of the narrator of this story. Now, before I explain each and every line of this lesson, I just want to give you a brief summary, brief introduction to this chapter. This chapter is based on a person whose name is Ken. Ken is going somewhere. Ken कहीं जा रहे होते हैं और जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब हो जाता है. Something different, something unexpected happened, something strange happened to Uncle Ken. Now what that strange thing was that happened to Uncle Ken, I am keeping this as the part of the learning, because if I describe the entire thing to you right now, you will lose interest in reading this story. So something strange happens to Uncle Ken. What strange happens, what different happens, what unexpected happens to Uncle Ken, we are going to learn in this particular chapter. And there is, see here the word the wicket. The word wicket is used in a game, in a sport, whose name is what? Cricket. We use the word wicket in cricket. So of course there is some connection of Uncle Ken with cricket. Okay, he plays cricket, or what does he do in cricket? We are going to look into that by reading this chapter, by reading this story. Okay, so I'm going to start the chapter. Keep the book before you and try to understand the meaning of each and every single line. So there's a starter here, and you know the answers to these questions written in the starter box. Name the items you see in the picture. What are the items you see in the picture? There's a bat, there are 3 wickets, there are 2 bails on the wickets, there are 2 pads which batsmen put on while batting, and also the wicket keeper, and there's a ball which is used by the bowlers. Okay. Now in a game of cricket, what does a bowler try to do? A bowler tries to get the wicket of the batsman. What does the batsman try to do? The batsman tries to score runs by taking single, by taking doubles, by taking threes, by hitting the ball to the boundary, or a lofty shot for a 6 run. What do the fielders try to do? The fielders try to get hold on the balls and try to stop the balls reaching the boundary. And what does the wicket keeper try to do? Wicket keeper tries to catch the ball when the bat touches, ball touches the edge of the bat. The ball straight away goes into the gloves of the wicket keeper and he takes catch, and whichever ball the batsman could not play, could not hit, is to be gathered, is to be collected by the wicket keeper only. Okay. Now that's it. We are going to read the entire chapter. So Uncle Ken, Dad's younger brother, was living with us at Kanpur. Where is Kanpur? It's a city in Uttar Pradesh. Okay. So the narrator says that his dad's younger brother, narrator जो ये कहानी सुना रहे हैं, उनके
डैड के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है केन, अंकल केन, वो नरेटर के साथ, उनके फैमिली के साथ रहते हैं। कहाँ? कानपुर में। Aunt Emily, the eldest of my 3 aunts, lived at Lucknow with her husband and 3 children. और एमली जो ऑन्ट है नरेटर की, चाची है नरेटर की, वह अपने जो सबसे बड़ी तीन नरेटर के 3 ऑन्ट्स हैं, 3 ऑन्ट्स हैं, उन 3 ऑन्ट्स में ये जो एमली ऑन्ट है ये सबसे बड़ी है। और वो कहाँ रहती है? लखनऊ में रहती है, विच इज ऑल्सो अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। वो अपने हस्बैंड और अपने 3 बच्चों के साथ एमली ऑन्ट लखनऊ में रहती है। One day, Uncle Ken announced that he was going to Lucknow to stay with Aunt Emily. एक दिन Uncle Ken कहते हैं अपने फैमिली मेंबर से कि वो कहाँ जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए? Aunt Emily के पास, जो लखनऊ में रहती है, उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए वो लखनऊ जा रहे हैं। Is going to Lucknow. She has 3 children and a school to look after, said Granny. Granny means grandma. जो ग्रैंड मदर है नरेटर की, वो कहती है अंकल केन से कि ऑन्ट एमली के पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और ऑन्ट एमली को एक स्कूल का भी देखभाल करना पड़ता है। और कहती है कि डोंट स्टे देयर टू लॉन्ग, ज़्यादा दिन किसी के यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, ज़्यादा दिन ऑन्ट एमली के पास नहीं रहने की सजेशन देती है ग्रैंड मदर। किसे? अंकल केन को। कहती है कि ज़्यादा दिन उसके यहाँ मत ठहरना, ज़्यादा दिन मत रुकना उनके यहाँ। She doesn't mind how long I stay, said Uncle Ken grumpily, and off he went. Grumpily means angrily, गुस्सा करते हुए। इस पर अंकल केन गुस्सा हो जाते हैं और ग्रैनी को, ग्रैंड मदर को कहते हैं कि मैं ऑन्ट एमली के यहाँ कितने भी दिन रुकूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये कह के अंकल केन चले जाते हैं। अंकल केन्स विजिट टू लखनऊ प्रूव्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। अब अंकल केन लखनऊ जाते हैं। कहाँ पे? ऑन्ट एमली के पास कुछ दिन रहने के लिए। और ये जो वहाँ लखनऊ जाना था, ये इनकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, यानी कि बहुत ही आनंददायक और बहुत ही यादगार लम्हा था जब ये लखनऊ पहुंचते हैं। अब वो क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अंकल केन के साथ कुछ स्ट्रेंज होता है, कुछ अजीब सा होता है उनके लाइफ में। क्या होता है वही आगे पढ़ने जा रहे हैं। We heard about it much later. लेटर कहते हैं कि अंकल केन के साथ लखनऊ में जो हुआ, जब वो ऑन्ट एमली के पास रहने को गए तो लखनऊ में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी स्ट्रेंज था और इसके बारे में हमें बाद में पता चला। क्या होता है उनके साथ लखनऊ में, ये देखते हैं। अब ये कानपुर से लखनऊ पहुंच चुके हैं। When Uncle Ken got down at Lucknow railway station, a large crowd gathered around him. जैसे ही अंकल केन लखनऊ रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, एक बड़ी भीड़ ने उनको घेर लिया था। Everything was waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu and English. भीड़ जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, जिस भीड़ ने अंकल केन को स्टेशन पे घेर लिया था, वो क्या कर रहे थे? वेव कर रहे थे, उन्हें हाथ हिला करके उन्हें वेलकम कर रहे थे। और शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम, यानी कि उनके स्वागत के लिए शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। किस किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी कि लखनऊ स्टेशन पे एक भीड़ ने, क्राउड ने बहुत ही हार्टली वेलकम किया। किसका? अंकल केन का। वैसा क्यों हुआ? अंकल केन तो जा रहे थे इमली की यहाँ। इमली जो ऑन्ट है, एमली ऑन्ट, उनके यहाँ अंकल केन जा रहे थे। फिर ये अचानक से स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों, और इस भीड़ ने अंकल केन का क्यों स्वागत किया? Before Uncle Ken could make out what it was all about, his neck was piled high with garlands of marigold. He could hardly open his mouth to say a word. इससे पहले कि अंकल केन को कुछ समझ आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है स्टेशन पे, क्यों ये भीड़, I mean so many people are welcoming me, they are shouting. उनके गले में फूलों की माला चढ़ा दी गई, बहुत लोगों ने फूलों की माला चढ़ाई उनके गले में,
और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। He was incapable of saying anything. वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। A young man came forward and announced, "The Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow." अब उसी भीड़ में से एक यंग इंसान, एक यंग मैन आगे बढ़ के आता है अंकल केन के पास और कहता है कि द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन जो लखनऊ में है, वो क्रिकेट एसोसिएशन के लोग आए हैं यहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए स्टेशन पे। Then he quickly led Uncle Ken to a car that was waiting outside the station for them. और फिर कुछ लोग अंकल केन को कार में ले जाते हैं जो कार स्टेशन के बाहर खड़ी थी, और फिर वहाँ से कार से अंकल केन कुछ लोगों के साथ निकल जाते हैं। अंकल केन को अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। Why the crowd had, kept garland around his neck, why the people were chanting welcome words, why the people were welcoming him, and what he had to do anything with the Gomti Cricketing Association. उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लोग मुझे क्यों ले जा रहे हैं कहीं भी। मैं तो ऑन्ट एमिली के घर जा रहा हूँ, ये अचानक से ये कौन है, मैं किन्हीं को नहीं पहचानता हूँ। तो वो थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। Uncle Ken had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. VIP treatment is given to a person who is very important, like celebrity, like politician, like bureaucrats, like businessmen. इन लोगों को VIP treatment मिलती है। अंकल केन को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि उनके साथ ये VIP ट्रीटमेंट क्यों हो रही है, क्यों इतनी ये क्राउड आई है उनको रिसीव करने के लिए, एक बड़ी सी गाड़ी में उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। While he was yet wondering about all this, the car drove into a sports stadium. अब ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी जो कार थी वो एक क्रिकेट स्टेडियम की तरफ बढ़ती है, क्रिकेट स्टेडियम में एंटर करती है। Only then did Uncle Ken realize that he was expected to play in a cricket match. तब जब वो क्रिकेट के स्टेडियम में एंटर करती है उनकी गाड़ी, तब उन्हें एहसास होता है कि he has to play a cricket match today, कि उनको आज एक क्रिकेट मैच खेलना है। लोग उन्हें एज ए क्रिकेटर लोगों ने उन्हें एज अ क्रिकेटर समझ लिया था कि अंकल केन एक क्रिकेटर है। तो एक मैच होने वाली थी स्टेडियम में, जिस मैच को खेलने के लिए अंकल केन को ले जाया गया था वहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि अंकल केन तो क्रिकेट खेलते नहीं हैं, ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है इस चैप्टर में। अभी तक तो कहीं मेंशन नहीं है कि अंकल केन एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो वो क्रिकेट खेल वो तो जा रहे थे ऑन्ट एमिली के पास कुछ दिन ठहरने के लिए। तो ये क्या हो रहा है उनके साथ, वो क्रिकेट स्टेडियम में उन्हें क्यों ले जाएगा, जबकि वो तो क्रिकेटर थे नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे देखते हैं। What had happened was in fact like this. अब आगे क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, हम देखते हैं क्या होता है उनके साथ। Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match at Lucknow. Bruce Hallam एक इंग्लिश क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। वो इंडियन टूर पे आए थे, इंडिया के टूर पे आए थे, और उन्होंने अग्री किया था कि वो चैरिटी मैच खेलेंगे। चैरिटी मैच मीन्स जिस मैच को खेलने के लिए क्रिकेटर्स पैसे नहीं लेते हैं और पब्लिक से जो पैसे जमा होती है वो कुछ सोशल कॉज में लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ब्रूस हेलम को एक्चुअली उस दिन मैच खेलना था। थोड़ा थोड़ा अब आपको भी आइडिया मिल रहा होगा कि ब्रूस हेलम और अंकल केन का क्या रिलेशन है। सो ब्रूस हेलम को उस दिन एक क्रिकेट मैच खेलना था, एक चैरिटी मैच खेलना था लखनऊ में। The previous evening he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach. कल की शाम प्रीवियस इवनिंग जो ब्रूस हेलम है उनकी पेट खराब हो गई थी, ठीक है, और वो दिल्ली में ठहरे हुए थे। आज उनको कहाँ आना था, आज उन्हें आना था लखनऊ,
क्रिकेट खेलने के लिए, और कल शाम उनकी पेट खराब हो गई थी, अपसेट स्टोमक एंड ही वाज इन दिल्ली टिल लास्ट इवनिंग। कल शाम तक वो दिल्ली में थे, उनकी पेट खराब हो गई थी। सो ही hadn't been able to catch the train, इसलिए वो ट्रेन पकड़ के लखनऊ दिल्ली से नहीं आ सके क्योंकि उनकी पेट खराब थी, यानी कि वो मैच खेलने के कंडीशन में ब्रूस हेलन नहीं थे। He had sent a message to the organizers of the match in Lucknow, but they didn't get it. ब्रूस हेलन ने लखनऊ में जो मैच ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन लोगों ने मैच अरेंज किया था, चैरिटी मैच, उनको मैसेज भिजवाया था कि उनकी पेट खराब है, एंड बिकॉज ऑफ अपसेट स्टमक ही वुड नॉट बी एबल टू प्ले, वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ये मैसेज ऑर्गेनाइजर्स के पास नहीं पहुंची थी। The cricket fans of Lucknow had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer. अब जो ब्रूस हेलन के फैंस थे, जैसे हमारे यहाँ अभी विराट कोहली हैं, उनके फैंस हैं, इसी तरीके से इंग्लैंड में बहुत फेमस क्रिकेटर थे ब्रूस हेलन, उनके भी बहुत फैंस थे इंडिया में, बहुत उनको पसंद करने वाले बहुत लोग सब थे। वो लोग लखनऊ स्टेशन पे उन्हें रिसीव करने के लिए काफ़ी भीड़ में आए थे। And by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Heलन। और इत्तेफाक की बात ये, कोइंसिडेंस की बात ये कि अंकल केन काफ़ी हद तक ब्रूस हेलन की तरह दिखने में लगते थे। अब आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया मिल रही होगी कि क्या कनेक्शन है अंकल केन का और क्रिकेट का। वो जा रहे थे ऑन चेमनी के पास, और वो क्यों पहुंच गए स्टेडियम। एक्चुअली अंकल केन का जो अपीयरेंस था, जो फेस कटिंग था, जो हेड पे जो हेयर थे, कुछ बॉल्ड हेयर थे, गंजा सा उनका सर का थोड़ा सा पार्ट हेयरलेस था, उन पे उस पर बाल नहीं थे। और ब्रूस हेलन का भी कुछ ऐसा ही फेस था, कुछ ऐसी फेस कटिंग थी, कुछ ऐसी बॉडी थी। तो लोगों ने अंकल केन को ब्रूस हेलन समझ लिया था। द पीपल टुक अंकल केन एज ब्रूस हेलन, दैट्स वाई लोगों ने अंकल केन को ब्रूस हेलन समझ के रिसीव किया था और उन्हें स्टेडियम ले गए थे। Even he had a bald patch on the crown of his head. ब्रूस हेलन के भी सर के ऊपर थोड़ा सा पैच था जहाँ पे बाल नहीं थे, और अंकल केन के भी सर पे पैच था जहाँ पे थोड़े से बाल नहीं थे। तो दोनों का चेहरा ऑलमोस्ट मिलता जुलता था। एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लेजर, उन्होंने ब्लेजर पहना हुआ था, जैकेट पहना हुआ था। हेंस ऑल द कन्फ्यूजन वॉज क्रिएटेड, और इसी की वजह से सारा कन्फ्यूजन हुआ कि भीड़ ने और ऑर्गेनाइजर्स के जो लोग थे जिन्होंने रिसीव करने को पहुंचे थे स्टेशन पे, दे टुक अंकल केन एज ब्रूस हेलन बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज क्वाइट सिमिलर टू द क्रिकेटर ब्रूस हेलन। Uncle Ken received a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. Uncle Ken जब पहुंचते हैं स्टेडियम में तो वहाँ पर उनको बहुत ही उनकी मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार उनका स्वागत होता है, और उन्होंने स्टेडियम में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट पी लिया। Now he felt that it would be very unsporting on his part if he refused to play cricket for them. अब अंकल केन को फील हो गया था कि क्यों उन्हें क्रिकेट स्टेडियम में लाया गया है। फिर अंकल केन सोचते हैं कि ये भीड़ मुझे देखने को इकट्ठा हुई है, भीड़ मुझे ब्रूस हेलन समझ रही है। अगर मैं इन लोगों के लिए क्रिकेट नहीं खेलूँगा तो ये अनस्पोर्टिंग होगा, ये अनफेयर होगा, अनुचित होगा, अच्छी बात नहीं होगी। फिर आगे सोचते हैं कि if I can hit a tennis ball, he mused, I ought to be able to hit a cricket ball also. वो सोचता है कि अगर मैं टेनिस बॉल खेल सकता हूँ, टेनिस बॉल को हिट कर सकता हूँ, तो ये क्रिकेट का जो हार्ड बॉल है इसे भी हिट कर सकता हूँ, यानी कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। एंड लकीली ही हैड अ वाइट शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वाइट ट्राउजर्स इन हिज सूटकेस, और लकीली भाग्य से उनके सूटकेस में वाइट ट्राउजर्स थे, पैंट थे, तो वाइट शर्ट और वाइट टी शर्ट और पैंट पहने जाते हैं टेस्ट मैच में, ठीक है। तो ये जो क्रिकेट का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ये अंकल केन के पास उनके सूटकेस में था, यानी कि मैच खेलने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब इनके पास था। इन्हें क्रिकेट बॉल को हिट करने आता था, इनके पास ट्राउजर्स थे, इनके पास वाइट टी शर्ट्स थे, सब कुछ थे। सो इन्होंने सोचा कि चलो मैं ब्रूस हेलन बन करके क्रिकेट खेल लेता हूँ।
The Gomti team won the toss and decided to bat. अब जो गोमती टीम है जिसकी तरफ से ये मैच खेलने जा रहे हैं, इस टीम ने टॉस जीता और इस टीम ने बैटिंग करने का पहले फैसला किया। अंकल केन was expected to go in at number 3, ब्रूस हेलम्स नॉर्मल पोजीशन। ब्रूस हेलम का जो बैटिंग में पोजीशन नंबरिंग आता था, बैटिंग करने की जो उनकी नंबरिंग आती थी वो नंबर 3 थी। जैसे हमारे विराट कोहली के नंबर 3 पोजीशन पे वो आते हैं बैटिंग करने को, वैसे ही अंकल केन को भी ब्रूस हेलम की तरह नंबर 3 पे जाना था बैटिंग करने के लिए। He soon found himself walking to the wicket, और अभी फर्स्ट विकेट गिरी थी और अब इनको जाना था पहला, इन्हें क्रीज पे जाना था, फील्ड पे जाना था बैटिंग करने के लिए। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड वाज शॉर्ट पिच। पहली बॉल जो थी वो शॉर्ट पिच आई थी, यानी कि पिच के बीच में लैंड हुई थी बॉल। सॉरी, सो जो फर्स्ट बॉल थी ना वो पिच के बीच में मिड में वो लैंड हुई थी, तो ये शॉर्ट पिच बॉलर ने पहला मिला था। He was able to deal with it in tennis fashion. उन्होंने टेनिस बॉल की तरह इस बॉल को खेला। It went to the mid wicket boundary. ये मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चली गई। मिड विकेट बाउंड्री एक एरिया होता है फील्ड का, ठीक है ना, क्रिकेट फील्ड का एक एरिया होता है। The crowd cheered lustily, और जैसे बॉल बाउंड्री की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाती है, सब जो पूरा क्राउड है वो एंजॉय करने लगता है। The next ball hit Uncle Ken on the pad. नेक्स्ट जो बॉल था वो अंकल केन के पैड पे जाकर के लगता है। He was right in front of his wicket. वो विकेट के ठीक सामने खड़े थे। He should have been given out leg before wicket, but the umpire hesitated to raise his finger. अब जब कभी भी एक बैट्समैन विकेट के ठीक सामने खड़े होता है और बॉल अगर उसके पैड को जाके हिट करती है तब देन द अंपायर हैज टू डिक्लेयर द बैट्समैन एज आउट। अंपायर को अपनी उंगली उठानी पड़ती है और बैट्समैन को पवेलियन चला जाना पड़ता है। सो ऐसा ही कुछ हुआ, बॉल एक्जैक्टली जाकर के उनके पांव के बीचों बीच लगी। After all, hundreds of people, but the umpire hesitated to raise his finger. लेकिन अंपायर ने फिंगर नहीं उठाया, उंगली नहीं उठाया, यानी कि अंपायर ने नॉट आउट डिक्लेयर किया अंकल केन को। After all, क्यों ऐसा किया अंपायर ने? After all, hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Helam play, and it would be a shame to disappoint them. अंपायर ने सोचा कि hundreds of people ने पैसे पे किए हैं ब्रूस हेलम की बैटिंग देखने को, और ब्रूस हेलम अगर इतनी जल्दी आउट होकर के चले जाते हैं तो ये क्राउड जो है, जो लोग उन्हें देखने के आए हैं पैसे दे करके, दे वुड फील डिसअपॉइंटेड, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, उन्हें निराशा फील होगी। सो लोगों की सेंटिमेंट को, लोगों की इमोशन को ध्यान में रखते हुए अंपायर ने एक अनफेयर डिसीजन दिया। हालांकि बॉल जाकर के सीधे स्टंप पे लगने वाली थी, यानी कि अगर पैड से नहीं टकराती बॉल तो सीधे स्टंप पे लगती, तो LBW देना चाहिए था, लेग बिफोर विकेट देना चाहिए था अंकल केन को, जो ब्रूस हेलम बन के खेल रहे थे। लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे दे करके टिकट खरीदी थी ब्रूस हेलम का मैच देखने के लिए। तो अंपायर ने सोचा कि लोग डिसअपॉइंटेड ना हो, लोग निराश नहीं हो जाए कि ब्रूस हेलम इतनी जल्दी आउट हो गए, तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंपायर ने एक अनफेयर डिसीजन दिया और उसे उन्हें नॉट आउट डिक्लेयर किया। नॉट आउट सेड द अंपायर, अंपायर ने कहा नॉट आउट। The third ball took the edge of Uncle Ken's bat and passed through the slips. अगला बॉल जो आता है वो अंकल केन के बैट के एज को, किनारे को टच करते हुए स्लिप कॉर्नर से, विकेट कीपर के ठीक राइट हैंड साइड में जो फील्डर्स खड़े होते हैं वो जो एरिया होता है उसे स्लिप कहते हैं। स्लिप के रीजन से, स्लिप के एरिया से बॉल बाउंड्री की तरफ निकल जाती है। इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री, और थर्ड मैन पे जो आखिरी एज, बाउंड्री के एज पे जो फील्डर खड़ा होता है थर्ड मैन में, वहां पे बॉल चली जाती है और एक 4 रन मिल जाते हैं। लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन। पवेलियन इज द प्लेस वेयर द रेस्ट ऑफ द players, cricketers sit and watch the match and wait for their turn to come to bat for. So pavilion से एक आवाज आती है, लवली शॉट, बहुत बढ़िया शॉट खेला। किसने? ब्रूस हेलम की अंकल केन ने पवेलियन में बैठे हुए लोगों को और
जो ऑडियंस स्पेक्टेटर्स दर्शक थे उन्हें लग रहा था कि ब्रूस हेलम खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन खेल रहे हैं? अंकल केन खेल रहे हैं। क्लासिक लेट कट, क्लासिक मतलब लवली, ब्रिलियंट, फाइन, बहुत बढ़िया उन्होंने लेट कट खेला था, धीरे से बॉल को टच किया था, लेट खेला था, काफी जल्दी उन्होंने नहीं खेला, जिसकी वजह से बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई। अंकल केन हैड अनदर 4 रन्स टू हिज नेम, अंकल केन को 4 रन और मिल गए, ठीक है। देन इट वाज ओवर एंड द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉलिंग। उसके बाद ये ओवर खत्म हो जाता है और जो नॉन स्ट्राइकर होता है, जो अगले दूसरे स्ट्राइक पे बैट्समैन खड़ा होता है, अब उसे आना है नए बॉलर को फेस करने के लिए। He took a run off the first ball and called for a second one. Uncle Ken thought 1 run was more than enough, but when the other batsman started running, he couldn't refuse to run. He was halfway down the pitch when a fielder hit the wicket. There could be no doubt this time Uncle Ken was run out. Now what happens? जो नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं खेलने के लिए नए ओवर को, उन्होंने एक बॉल को सिंगल के लिए खेला, उन्होंने सिंगल ले लिया, लेकिन जो बैट्समैन थे, दूसरे बैट्समैन थे, उनको लगा कि ये डबल हो सकता है, 2 रन लिया जा सकता है। जैसे ही वो 2 रन लेने के लिए दौड़ते हैं, वैसे अंकल केन क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। अंकल केन अभी दूसरे रन लेने के लिए हाफ पिच ही पहुंचते हैं कि बॉल विकेट कीपर के पास चली जाती है और वो बेल्स को ऑफ कर देता है, और इस तरीके से अंकल केन यानी कि ब्रूस हेलम, लोगों की नज़र में ब्रूस हेलम, हमारे और अंकल केन की नज़र में अंकल केन आउट हो जाते हैं, यानी कि ब्रूस हेलम रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। अंकल केन रिटर्न टू द पवेलियन टू द सिंपैथेटिक अपलॉज ऑफ द क्राउड। अंकल केन आउट तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो पवेलियन जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्राउड ने, भीड़ ने ताली बजा के उन्हें विदा किया। Not his fault, said the elderly gentleman. एक बड़े बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा कि ये रन आउट अंकल यानी कि ब्रूस हेलम की फॉल्ट नहीं, यानी कि अंकल केन की फॉल्ट नहीं है। The other batsman shouldn't have tried to take 2 runs. दूसरे बैट्समैन को दूसरा रन नहीं लेना चाहिए था। There wasn't a run there. दूसरा रन था ही नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना चाहिए था, तो ब्रूस हेलम यानी कि अंकल केन आउट नहीं होते। अब मैच खत्म होता है। अंकल केन एंजॉयड अ हार्टी टिफिन, अंकल केन ने भरपूर खाना खाया। Then he slipped out of the station, took a tonga and reached Aunt Emily's house. अब अंकल केन चुपके से स्टेडियम से निकल जाते हैं, एक टोंगा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और ऑन्ट एमिली के घर पहुंच जाते हैं। He was just in time for the second lunch with Aunt Emily's family. अब जब वो घर पहुंचते हैं तो ऑन्ट एमिली के घर पे लंच होने वाला होता है, तो वहाँ भी ये लंच करते हैं। स्टेडियम में इन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच भी किया, फिर ऑन्ट एमिली के यहाँ भी जाते हैं, तो ये लंच लेते हैं। It was presumed at the stadium that Bruce Helam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. लोगों को लगा कि ब्रूस हेलम, लोगों को तो लग रहा था कि वो ब्रूस हेलम खेल रहे थे, तो लोगों को लगा कि ब्रूस हेलम अगली ट्रेन पकड़ के वो इलाहाबाद चले गए हैं, जहां पे उन्हें नेक्स्ट मैच खेलना है। Aunt Emily, a forceful woman, fed Uncle Ken for a week. Forceful woman वो होती है जो अपनी बातें किसी को कहे, अपने मन की बात किसी को कहे और दूसरे लोगों से बड़े गौर से सुने। वो असर्टिव नेचर की होती है, अपनी बातों को सही साबित करना और सुनाने में और सही साबित करने वाली वो औरत थी। यानी कि जब ऑन्ट एमिली कुछ बोलती थी तो लोग उसे सुनते थे, उसे सही मानते थे। सो ऑन्ट एमिली ने अंकल केन को खिलाया पूरे 1 हफ्ते। अंकल केन ऑन्ट एमिली के 1 हफ्ते रहे और उन्होंने उन्हें बहुत खाना खिलाया। Then she put him to work in the small boys' dormitory of her school. उसके बाद अंकल केन को काम दे दिया ऑन्ट एमिली ने अपने स्कूल के डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री क्या होता है? वो इलाका होता है, वो हॉल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सोते हैं। रूम फॉर मेनी टू स्लीप, एक ऐसा बड़ा सा कमरा जिसमें बहुत सारे लोग सोते हैं, ठीक है। स्कूल में, हॉस्टल्स में डॉर्मेट्री होते हैं। तो अंकल केन को ऑन्ट एमिली ने एक काम दे दिया स्कूल डॉर्मेट्री में। It was several months before he was able to save up some money for a ticket to Granny's place, और कई महीनों के बाद कुछ पैसे
जमा इकट्ठा करने के बाद अंकल केन फाइनली फिर अपने घर ग्रैनी के पास, ग्रैंडमदर के पास जाते हैं। बट he had the satisfaction of helping the great Bruce Hallam to add 8 runs to his grand total. उन्हें इस बात की खुशी थी, सेटिस्फैक्शन थी, संतुष्टि थी कि उनकी वजह से ब्रूस हेलम के टोटल रिकॉर्ड जो नंबर जो रन्स के रिकॉर्ड होते हैं उसमें कितने रन्स और ऐड हो गए, 8 रन्स ऐड हो गए, और क्योंकि उन्होंने 2 बाउंड्री मारी थी और वो बाउंड्री किसके रिकॉर्ड में जाके मेंशन होगी, ब्रूस हेलम के रिकॉर्ड में। द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन हैज रिकॉर्डेड दिस फीट फॉर ऑल टाइम। गोमती क्रिकेट एसोसिएशन ने ये अंकल केन के द्वारा जो रन बनाए गए थे उसको रिकॉर्ड कर लिया था। वो रन किसके अकाउंट में जाके एंट्री होते हैं, ब्रूस हेलम के अकाउंट में जाके एंटर होते हैं, यानी कि ये 8 रन्स ब्रूस हेलम के नाम के बने थे। अंकल केन कोई फेमस वर्ल्ड क्रिकेटर थे ही नहीं। सो इस तरीके से हमने देखा ये चैप्टर अंकल केन एट द विकेट। सो बेसिकली अंकल केन एक क्रिकेटर नहीं होते हैं, वो लखनऊ जा रहे होते हैं ऑन्ट एमली के पास, बट ऑल ऑफ अ सडन लखनऊ स्टेशन पे समथिंग स्ट्रेंज उनके साथ होता है, कुछ अजीब उनके साथ होता है। एक भीड़ उन्हें रिसीव करने के लिए आती है और गाड़ी में लेकर के कहाँ चली जाती है, क्रिकेट स्टेडियम चली जाती है। फिर अंकल केन को ऐसा फील होता है कि वो ब्रूस हेलम के लिए खेलने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रूस हेलम की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, अंकल केन ने उस मैच में 8 रन बनाए और जब वो आउट होकर पवेलियन जाते हैं तो उन्होंने एक लंच लिया, वहाँ पे अच्छा खासा भोजन किया और खाना खाने के बाद वो चुपके से ऑन्ट एमली के घर निकल जाते हैं। वहाँ पे भी वो जा करके लंच लेते हैं, दोबारा खाना खाते हैं और ऑन्ट एमली ने उन्हें डोमेट्री हाउस में एक काम दे दिया था। कई महीनों तक अंकल केन ने वहाँ पे काम किया और कुछ पैसे जब उन्होंने सेव कर लिए, उन पैसे से उन्होंने टिकट खरीदा और फिर वो फाइनली कानपुर अपने माँ के पास या अपने घर चले गए रहने को। और अंकल केन को इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि ही एडेड 8 रन्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ब्रूस हेलम। ब्रूस हेलम के टोटल रन रिकॉर्ड में उन्होंने 8 रन जोड़ा इस गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन की तरफ से, जिन्होंने एक मैच, चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, एंड होता है। आप इस चैप्टर को पढ़ें, लाइन बाय लाइन रीडिंग डालने की प्रैक्टिस करें और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें। नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी वोकैबुलरी सेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।